Yes, student, good morning, all of you. So we are discussing the NCERT questions today. Okay, you are supposed to give the answers. तो आपने आंसर देना है. नो मैटर्स कि आंसर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम इज देयर. Yes, बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन इज why are living organism classified? मैम मैं बताऊं. Anyone of you can speak. First you tell me your name and then give the answer. Who is going to give the answer? मैम चिराग. Chirag. Yes, बेटे, speak up. Living organisms are mainly classified because of biodiversity. Millions of organisms are living in this planet in diverse climate and diverse physiographic conditions. Since there are a lot of organisms, this makes it harder for us to study each one individually. This is why we usually group organisms with similar features and study them as a whole to make their study easier. Yes, बेटे, very good. और कोई बच्चा बताना चाहता है कुछ? Anybody want to speak or add some more points to Chirag's answer? Yes, but Srishti, speak up. Classification of organisms make the identification easier, and we can also study them in a easier way. It makes our work easier. Okay, beta. So I'm going to conclude the answer. It is a prime necessity to classify the living organisms, because if we classify the living organism, then it is very easier for us to identify them. ठीक बेटे. So as you know that in the process of classification, we generally classify the organism in some of the convenient categories, and these categories are actually based on the similarities as well as dissimilarities found on the organism. So if you maintain the organism in a proper group on the basis of the similar and dissimilar characters found in them, so this is very easy to identify those organisms. So whenever we call the name of that organism, so characters of that organism, it finally comes in our mind. And second thing is very important, that there is a diversity among the living world. So it is not possible for us to remember the features of each and every organism. So if we divide these organisms into suitable categories on the basis of certain observable characters, then our task it becomes easy. ठीक है. और दूसरी चीज है कि कंफ्यूजन जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. हम करेक्टर्स जो है उसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक बेटे. अनदर थिंग इज कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कोई भी चीज मुफ्त में नहीं करते. They always, if they have done classification of living organism, then this means some purpose is there behind that classification. ठीक है. So they are always trying to find out the economic benefits that we obtain from these organisms. So through the process of classification, they are fully aware of the characteristics of living organism, what kind of products we obtained from these species, whether they may be of the plant or animal species. ठीक है. तो उससे कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको भी बेनिफिट होता है. हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी स्पीशीज हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, what kind of product we obtain from that particular plant species. So there are numerous plants from where we obtain cosmetics. ठीक है. मेडिसिन हमें मिलती हैं, या फिर शेल्टर जो है उसको हमने जो है उसके लिए कौन से प्लांट्स हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स दैट कैन बी कल्टीवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में हम अवेयर हो सकते हैं. तो इस तरह से कहते हैं कि जो है हमें ये पता लग जाता है कि स्पीशीज जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है एनवायरनमेंट में. सो इफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एनवायरनमेंट, तो इन दैट सिचुएशन, ठीक है, द ह्यूमन बीइंग्स दे आर कैपेबल टू नो about those species by the process of classification, and the proper protection of those species can be done later by them. Okay. तो और भी कोई पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो. आप कहते हैं कि why are the classification system changing every now and then. ठीक है. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो कहते हैं कि हमेशा चेंज होते रहते हैं. अभी भी चेंज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हमेशा चेंज होते रहेंगे. ऐसा क्यों है मैम? हाँ जी बेटे बोलिए.
Millions of plants, animals, and organisms found on Earth have been identified by scientists, while new species are being still discovered around the world. Therefore, to classify these newly discovered species with new characters, a new system of classification have to be devised every now and then. This creates requirement to change the change the classification system. Yes, madam. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है. ठीक है बेटे. वो कहते हैं कि you cannot say that evolution is a static process, whereas it is a dynamic kind of process. So it is not a, you can say, hard and tough rule that you have to follow कि species अगर एक बार अर्थ के ऊपर आ गई हैं तो वो हमेशा के लिए जो है फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होता है. न्यू एंड न्यू species they are added every year, and some of the previous species they are also lost by degeneration of their characters, or they have some of the species they have a shorter lifespan. ठीक है. तो कहता है कि न्यू एंड न्यू स्पीशीज अकॉर्डिंग टू डार्विन ये कहते हैं कि हमेशा नई स्पीशीज जो हैं वो ऐड होती रहती हैं, और जो स्पीशीज जो हैं पुरानी हो चुकी हैं वो क्या करती हैं, whenever they participate in the process of competition, and if they are not able to compete with the superior species they extinct. ठीक है. वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन cannot be fixed, because if every time new species are added on the earth, and some of the species they may be lost because of certain natural disasters or at their own, then we have to update the record of the classification. ठीक है. हमें हमेशा क्लासिफिकेशन का रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा. तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा चलता रहे. And by the process of evolution, you know that there are so many mutations occurs in the species time to time. When a particular species it is living in a habitat, then according to the need of that habitat, the species they introduce certain new adaptive changes in them, and because of that changes, new mutations occur in the species, and new subspecies they introduce. ठीक है. तो हमेशा कहता है कि नए करेक्टर आते रहते हैं, और एक ही स्पीशीज में से कई सारी सब स्पीशीज पे निकलती रहती हैं. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि न्यू मेंबर्स जो हैं, न्यू स्ट्रेन्स जो हैं, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से हैं, ठीक है, चाहे किसी हैबिटेट की डिमांड की वजह से है, वो हमेशा होती रहेंगी. एक डायनेमिक एंटाइटी है, कभी भी एक स्टैटिक फैक्टर नहीं हो सकता. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो रिजिड और फिक्स्ड नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? हाँ जी बेटे, एनीबॉडी कैन स्पीक. Geographical location, यस. their nature, हाँ जी. skin color. According to their gender. थोड़े से बेटे आवाज ऊंची रखेंगे. मैं फिर से बोल रही हूँ. कहते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं. According to their gender. यस. Skin Hobbies. color. ओके. हॉबीज एंड इंटरेस्ट. वेरी गुड. Career, Gender. यस. प्रोफेशन, करियर. वेरी गुड. education. Yes, but education, level of education, some of the Native people place. are, yes, educated one. ठीक है. कुछ में लिटरेसी रेट कम है. तो there are 7 to 8 points. Age. Yes, बेटा. सबसे पहले ना हम किसी भी पर्सन जो है ना उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल we see the morphological features that are present in them. ठीक है. We classify people on the basis of their height, their skin color. मैंने आपको बताया था कुछ लोग बहुत टॉल हो सकते हैं, कुछ के इंटरमीडिएट हाइट हो सकती है, कुछ ड्वार्फ हो सकती हैं. ठीक है. स्किन कलर के अकॉर्डिंग वी हैव क्लासिफाइड द ह्यूमन रेसेस. आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू सम ऑफ द पीपल. दे आर the white peoples, those who generally live in the European countries, Western countries. ठीक है. Some of the human races are the Negroes, those who are found in the sub-African continent, and कुछ एशिया के जो लोग हैं they comes under the British kind of people. ओके बेटे. उसके अलावा वो कहते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया, टॉल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हाइट है, या फिर ड्वार्फ हो सकते हैं.
ठीक है, ड्वार्फ पीपल देखो हमें कहाँ पे नजर आएंगे, वी मोस्टली फाउंड द पीपल जिनकी की हाइट बहुत ही कम होती है, दे आर फाउंड इन द एल्टीट्यूड रीजन्स। ठीक है, तो समटाइम व्हेन यू हर्ड अबाउट द डिफरेंट requirements that you generally see for a career in defense, you find that कि इनको कुछ रिलायबिलिटीज दी गई होती हैं लोगों को कि जो एल्टीट्यूड्स या हिली स्टेशन से आते हैं, कि उनके लिए अगर उनकी हाइट छोटी भी है तब भी उनको रखा जाता है डिफेंस फोर्सेस में। ठीक है, जैसे गोरखास होते हैं, नेपालीज होते हैं, और हमारे कंट्री में असम में रहने वाले लोग हैं, सिक्किम में रहने वाले हैं, तो उनको शॉर्टर हाइट जो है वो उनका एक नेचुरल फीचर है। ठीक बेटे, इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है, नेटिव प्लेसेस के बेसिस पे भी वी हैव क्लासिफाइड द पीपल। ठीक है, कि उनका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ का है, क्या वो इंडियन ओरिजिन रखती है, क्या अमेरिकन ओरिजिन रखते हैं, कहाँ के हैं वो लोग, उसके बेसिस पे। देन अकॉर्डिंग टू द सेक्स, ठीक है, वेदर दे कम्स अंडर मेल और फीमेल। अभी आपने बोला है हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, कैसी चीजें हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद देखो नेचर के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव with others, whether they are showing affectionate kind of behavior. ठीक है, they are not good in their behavior, this you have to follow. उसके बाद प्रोफेशन के बेसिस पर कि वो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियरिंग में बिलीव करते हैं, या मेडिकल फील्ड के लोग हैं, कैसे लोग हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे, जैसे इंडिया के अंदर ही हम कहते हैं कि वे केरला जो है उनमें लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बिहार के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम है। ऑन दैट बेसिस these features can be considered for the classification. Okay student, next is question number 4. What do we learn from identification of individuals and population? ठीक है, कहते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल्स या फिर पॉपुलेशंस जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उससे हमें क्या चीजें पता लगती हैं बेटे। हाँ जी सृष्टि, वांट टू गिव द आंसर? यस बेटे। It helps us to know the similarities and dissimilarities between the species, individuals, and we can classify into different categories on the basis of their similarities and dissimilarities. मैं थोड़ा सा elaborate करूंगी, some more student want to give the answer. Yes, anybody? Ma'am, Yes. we can identify their gender. Yes, yeah, very good. And we can identify like from their outer morphological features, their skin color, and then their religion, and then the place from they belong. Yes, yes. देखो बेटे, so many And caste. features. You know that India is a Ma'am, food habitat. हाँ जी बिल्कुल, डाइवर्स कंट्री है। ठीक है बेटे, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया कम्स अंडर द 7th मेगा डाइवर्सिटी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कल्चर और हेरिटेज के बेसिस पे भी इफ यू सी योर कंट्री, सो देयर इज वाइड वेरिएशंस फाउंड इन योर कंट्री। तो सो मेनी थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच you can identify the individuals or the members of a population. तो उसमें उसने बताया कि नेटिव प्लेस सबसे पहले जो है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इफ वी कम अंडर पंजाबीज, तो पंजाबीज का बोलने का एक तरीका है। ठीक है, अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, अगर हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं या हम हिंदी भी बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मदर टंग है वो थोड़ी सी अपना एक्सप्रेशन शो करती है। तो उसी तरह से हमें पता लग जाता है जब भी हम दूसरों के साथ बात करेंगे, whenever we talk with others, then other peoples are able to find out that what is our native place. ठीक है, on the basis of our mother tongue we are easily identified by other people. ठीक है, तो जनरली कहते हैं ना कि whenever a person has to show his actual behavior, he always use his mother tongue for his verbal expressions. ठीक है, whenever you want to beat someone, हमने किसी की पिटाई करनी है, बहुत गुस्से में है, तब भी हम अपनी मदर टंग में जो है लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है बेटे, कॉस्ट्यूम्स के बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पीपल। ठीक है, इफ वी आर पंजाबी so we more prefer our traditional dresses as compared to the other western dresses. We feel comfortable in our own dress. ठीक है बेटे, कुजीन के बेसिस पे किस तरह का हमारा खान पान है, क्या हमारा फूड है। ठीक है, अगर हम इंडियंस हैं तो वेजिटेरियन जो है, मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन होती है।
ठीक है, ये नहीं कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, पर फिर भी अगर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन को भी कंपेयर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर द वेजिटेरियन वंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिलीजन, वेदर वी बिलोंग टू सिखिज्म, हिंदुइज्म, ओके, जैनिज्म है, बुद्धिस्ट है हम, तो किसको हम बिलोंग करते हैं, रिलीजन को, एंड व्हाट इज अवर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेदर वी बिलोंग टू द हाई क्लास, या फिर हम हाई मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, लो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, या फिर वी आर द पीपल हु आर लिविंग बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी। So these things which must be considered when we have to identify the individuals or the members of a population. Okay, student, next question, question number 5. Given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. ठीक बेटे, दो तरह से मैंगो का नेम लिखा गया है. Mangifera indica in the first name, both the letters Mangifera and indica starts with capital letter. And second one, Mangifera is starting with the capital letter and indica is starting with the small letter. Which is the correct one? Yes, bete. Anyone of you can speak? Second. Second one. Ma'am, Second one is yes. The second one is the correct one, because you know that in binomial nomenclature, okay, the name it consists of two words, and first word it always designate the name of the genus, और genus का name हमेशा capital letter से start होता है, and the name of the species it always starts with a small letter. Okay, student, what is a taxon? Define the term taxon and give some example of taxa at different hierarchical levels. Hanji, can you define taxon? Yes, students. A taxon is any taxonomic category. Basically, it is scientifically classified group or entity, a taxonomic unit of any rank. Okay. देखो बेटे, अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर देना होता ना, तो मैं कह सकती हूँ कि you know that taxonomic hierarchy consists of so many taxonomic categories, and at each taxonomic categories there is one specific rank. ठीक है, and that rank is actually known as a taxon. So you can say that a taxon is a rank in a taxonomic category of a taxonomic hierarchical system. Okay बेटे, आगे देखो, उसने एग्जांपल पूछे आपसे टैक्सा के, तो उसमें आप हर एक लेवल पे टैक्सा के एग्जांपल देंगे. जैसे कल मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसमें मैंने आपको स्पीशीज लेवल पे भी टैक्सॉन बताए हुए हैं, then at the generic level, then family level. So you go through that notes and write down the answer. Okay, next thing, can you identify the correct sequence of taxonomical categories? ठीक है, 3 more options are there. हमने ये बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सही सीक्वेंस में लिखा गया है. Yes, students. Which one? A and C में. A and B. C. हाँ जी, फाइनल A जवाब and B. दीजिए. What is the correct A answer? and C. A and C. A and C is correct बेटे. ठीक है, 2 करेक्ट है इसके अंदर. फर्स्ट वाला A पार्ट और C वाला पार्ट जो है वो करेक्ट. ठीक है, बीच वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो स्पीशीज पहले आना था, फिर जीनस आना चाहिए था, फिर ऑर्डर आएगा और फिर किंगडम आएगा. उसके बाद देखो, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीशीज. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. Hanji, define the term species first. Yes, students, are you able to define the term species? A group of individual organisms with basic similarities is called species. Yes, बेटे. अगर थोड़ा सा elaborate करूँ ना, तो I can say कि species consist of group of a similar kind of organism which are sharing certain basic fundamental characters, and they are not only similar in their characters, but they are able to interbreed among themselves to produce a fertile offspring. अब देखो, उसके बाद थोड़ा सा उसने elaborate किया है, कहता है कि species in case of higher plants and animals. तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, उस केस में हम स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, और बैक्टीरिया के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है बेटे. तो इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पीशीज को हमने जो मेन चीज जिस पे हमने फोकस करना है स्पीशीज पे, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में,
तो वो ये है इन केस ऑफ एनिमल्स दैट स्पीशीज आर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया सिमिलर कैरेक्टर तो उसके अंदर होंगे ही होंगे, पर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट these members they belong to the same species if they are able to interbreed among themselves. I want to say that कि वो reproduce कर सकते हैं, और अगर वो reproduce कर पाते हैं और उसके बाद offspring जो develop होता है उनके reproduction के बाद वो fertile है, तो हम कह सकते हैं कि सारे species जो हैं, मतलब सारे members जो हैं वो same species के हैं। ठीक है, तो इसका अगर हमने एग्जाम्पल देना हो तो हम इसका एग्जाम्पल ये देंगे कि if we are talking about the tiger species and lion species, and lions are not able to interbreed with tigers. ठीक है, lions जो हैं वो tigers के साथ interbreed नहीं कर सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि interbreeding होती भी है तो fertile offspring produce नहीं होंगे, जैसा कि donkey के केस में और horse के केस में हुआ था। mule is the animal but mule is not a fertile one, it is a sterile kind of animal. और देखो प्लांट स्पीशीज जो है, देखो बेटे प्लांट स्पीशीज के केस में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि ऑल द मेंबर्स दे बिलोंग टू द सेम प्लांट। तो यू फाइंड दैट यू नो दैट इन केस ऑफ प्लांट स्पीशीज, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, व्हाट यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, you observe that the male and female gametes they are produced in their respective sex organs. ठीक है, can you tell me what is the male gamete in case of angiosperms? pollen grain. Yes, it is pollen grains बेटे, and egg cell is the female gamete. ठीक है, तो देखो एक चीज अगर आपको 10th की याद है, मैंने आपको 10th क्लास में कई बार स्टूडेंट्स को बताई है कि जब पोलन ग्रेन्स जो हैं when they fall on the stigma of the flower, ठीक है, तो it is not always possible that the pollen grains of the same species they fall on the stigma of the same flower which belong to that species, क्योंकि देखो pollen grain जो है they are either moving by wind or water etc. So accidentally they can fall on some other species. Then what happen, these pollen grains they are identified by the stigma of the flower. If they belong to the same species they are able to germinate on the stigma and they produce the pollen tube, and later they carries the male gamete which fuses with the egg cell. पर अगर वो कहते हैं कि वो pollen grain उस species का नहीं है, तो जो स्टिग्मा होता है ना फ्लावर का, वो certain specific type of chemical responses show करता है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस पोलन ग्रेन इज नॉट ऑफ माय ओन स्पीशीज, तो दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देता, तो पोलन ट्यूब निकलती ही नहीं है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। अब वो कहता है कि बैक्टीरिया के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है बेटे, तो बैक्टीरिया के बारे में क्या ख्याल है, तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कि क्या हम इतने सारे न्यूमरस स्टेन्स हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, तो उसमें हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये एक ही बैक्टीरिया की स्पीशीज है। कुछ आइडिया किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, एनी आइडिया? वैसे ही ये मैंने कभी नहीं बताया लोअर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, देयर इज वन टेस्ट बाय व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल स्पीशीज, ठीक है, whether they belong to the same members or not, and that test was first introduced by the scientist Graham. ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था ग्राम, और उन्होंने एक स्टेन बनाई थी जिसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं। तो ग्राम स्टेन जो है ना, उसके साथ अगर हम बैक्टीरियल सेल्स जो है उनका टेस्ट करते हैं, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनका वो कहते हैं कि बैक्टीरियल कोट जो होता है उसमें ग्राम स्टेन जो है उसका ब्लू कलर जो है, ठीक है, ब्लू कलर जो है उस कोट के अंदर जो है वो उसको ले लेता है और उससे बैक्टीरियल स्टेन्स जो हैं वो ब्लू हो जाती हैं, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज कहते हैं। ओके बेटे, और जो कहता है कि ऐसे बैक्टीरियाज जिसमें कि ग्राम स्टेन जो है, ठीक है, बैक्टीरियल कोट नहीं लेता और वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें ब्लू कलर डेवलप नहीं होता, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये माना जाता है कि दोस बैक्टीरियाज हु आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज whenever they doing infection in a living organism ना, तो उनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है इन्फेक्शन कॉज करने का वो सेम होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जब उन्होंने कोई डिजीज कॉज करनी है तो उनका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है, तो इसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ओके बेटे, आगे देखो, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स बिकॉज यू गो थ्रू द चैप्टर very clearly, तो now you are able to define this term, आप easily बता सकते हो, phylum, class, families, order and genus।
ठीक बेटे, तो नो नीड ऑफ डूइंग इट अगेन, आई हैव रिटन इट इन माई नोट्स। तो उसमें आपने बता देना है कि जीनस जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज, देन व्हाट इज ऑर्डर, ठीक है, इंटर रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप है, इंटर रिलेटेड जीनस का ग्रुप फैमिलीज होती है, और इंटर रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप जो है वो क्लास होती है। एग्जाम्पल देने भूलना नहीं है, एग्जाम्पल साथ में देने हैं, ठीक बेटे। और फाइलम जो है वो आपको पता है कि किंगडम से लोएस्ट जो कैटेगरी है वो फाइलम है, ठीक। तो उसमें आपको डिसिमिलर कैरेक्टर ज्यादा नजर आएंगे और सिमिलर कैरेक्टर्स आपको कम नजर आएंगे, ठीक बेटे। अब हम 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज द की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? यस बेटा श्रेया, श्रेया यू वांट टू गिव द आंसर? हाँ जी बेटे बोलो। देखो यहाँ पे हमने, हाँ जी देखो बेटे इसके आंसर में हमने ये लिखना है। श्रेया आई थिंक यू आर फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर बेटे। So here you have to write that key is a kind of a taxonomical aid, and this key, ठीक है, it is actually a kind of a method in taxonomy where we generally consider two contrasting characters of a particular organism, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि key is always analytical in nature. So we here consider two type of contrasting characters. Some of the contrasting characters, they are showing the similarities that are found in that organism, and some of the other characters, they are the dissimilar type of characters. So pair of these characters, they are known as couplets, ठीक है बेटे। तो on the basis of this, that if some similar characters they are found in that species that are greater as compared to the dissimilar character found in that particular organism, तो हम क्या करते हैं कि जिसके साथ वो ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं ना, उसी को उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर हम उस स्पीशीज को डाल देते हैं। और अगर उसमें डिसिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है तो फिर अनदर ग्रुप जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो बस आप इसके अंदर यही लिखेंगे कि वी ड्रॉ एन एनालिटिकल कंक्लूजन बाय कंपेयरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज फाउंड इन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक। तो जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल उसने आपको दिया है कि अगर हमने क्लास मेमेलिया के मेंबर जो हैं उनके बारे में बताना है, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मेमेलिया इज प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है। अनदर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक बेटे। तो हम बोलेंगे कि इफ द हेयर्स दे आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, if they have one pair of mammary glands, this means they are the members of class Mammalia, and if both the features they are not present, this means they cannot come under class Mammalia, okay। तो इस तरह से हमेशा की जो होती है ना उसके अंदर हम एनालिटिकल फीचर्स जो हैं उनको लेते हैं। अगर सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा हैं तो वी प्रोसीड विद दैट ग्रुप दैट कंटेन्स द सिमिलर कैरेक्टर्स, वी पुट दैट ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, अदरवाइज वी रिकमेंड फॉर द नेक्स्ट वन। सो वो उसके बाद देखिए इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल। तो कोई भी एक प्लांट आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो इफ यू रिमेम्बर हमने एक टेबल किया था, उसके अंदर हमने प्लांट्स में पढ़े हैं दो, ठीक है, व्हीट एंड मैंगो के बारे में। तो इसमें से कोई भी एक आप लर्न कर लेंगे। You know that the scientific name of wheat is Triticum aestivum. So you have to write it in the same order as given in the taxonomic categories on table 1.1. So genus here is Triticum, species here is aestivum, family कौन सी है Poaceae, order कौन सा है Poales, class is Monocotyledon, that means monocot plants, and division is Angiospermae, ठीक है बेटे। उसी तरह से एनिमल का एक एग्जांपल उठा लेंगे कोई भी। तो यहाँ पे एनिमल का एग्जांपल जो है वो हमने हाउस फ्लाई का अगर लिया है तो मस्का डोमेस्टिका इज द नेम, मस्का इज द जीनस, डोमेस्टिका इज द स्पीशीज, एंड व्हाट इज द फैमिली, फैमिली इज मस्कीडिए, देन ऑर्डर इज डिप्टेरा, देन क्लास इज इंसेक्टा, एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। सो एनी अदर एग्जांपल यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर लेवल। इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल है डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज के। अगर आप बुक वाले नहीं कंसीडर करना चाहते, यू गो फॉर द अनदर, ओके स्टूडेंट। तो दिस कंप्लीट्स आवर
chapter 1. So we have to do 3 chapters. Earlier I have selected 4 chapters, but because you are the beginners, so इसलिए मैंने सोचा कि हम 3 chapters के लिए जाएंगे शुरू में. ओके बेटे. सो थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहती हूँ आपको हमारे न्यू चैप्टर के बारे में. सो दिस इज अवर सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है बेटे. होल यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन डिटेल अबाउट the different process of classification that are used by the scientist time to time. Okay, तो यहाँ पे हम biological classification के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो chapter 2 of your NCERT book, that is biological classification. So what we are going to study in this chapter, biological classification, I am going to tell you the different systems of classification. Some of them are the previous type. ठीक है. और उसमें से कुछ जो हैं वो जो हैं आपके, ठीक है बेटे, न्यू है. तो देखो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक पर, एंड सी पेज नंबर इज, आई थिंक पेज नंबर है 16. ओके बेटे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, this is the chapters we are going to study here in detail about the various systems of classification. So first system which we will tell you about, that is the Aristotle system of classification. ठीक है. Aristotle system of classification के बाद we are also going to study about the another system of classification, and then another system of classification is the two kingdom system of classification. ठीक है बेटे. तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था वो भी आपको मालूम है. The two kingdom system of classification was given by the famous scientist Carolus Linus. And after the two kingdom system of classification, there is one another system of classification, and that is the five kingdom system of classification that was given by the scientist R.H. Whittaker in the year 1969. तो उसमें 5 किंगडम उसने बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके स्टूडेंट्स. तो उसके बाद वो कहता है कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दिस किंगडम्स. किंगडम मोनेरा, व्हाट आर देयर फीचर्स. ठीक है. मोनेरियंस जो है ना वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट आर फाउंड इन दीज मोनेरियंस. देन वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक बेटे. मोनेरियंस में हम 2 तरह के बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द आर्की बैक्टीरिया एंड देन द यू बैक्टीरियाज. तो आर्की बैक्टीरियाज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज अडैप्टेड टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड यू बैक्टीरियाज आर द ट्रू बैक्टीरियाज एंड दे आर द एडवांस्ड वन. व्हाट आर द फीचर्स दे आर फाउंड इन देम, दैट वी विल स्टडी. ठीक स्टूडेंट्स. उसके बाद देखो another very important thing is कि after this kingdom we have another kingdom, मोनेरिया के बाद that kingdom is, ठीक है बेटे. एक चीज और बताइए उसने किंगडम मोनेरा जो है उसमें माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया है कि माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. देन वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा दैट आर वेरी मच फेमिलियर टू यू. तो उसमें वो सारे आ जाते हैं, यूग्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ऑल कम्स अंडर दिस. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे क्राइसोफाइट्स हैं. देन वी हैव डाई एटम्स. और उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास डाई एटम्स को ना हम डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं. ठीक है. और उसके बाद यूग्लिनॉइड्स आ जाते हैं. तो फिर स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं. फिर हमारे पास थर्ड हमारा किंगडम स्टार्ट हो जाता है जिसको किंगडम फंजाई कहते हैं. तो किंगडम फंजाई में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरियस क्लासेस. क्लास फाइकोमाइसिटीज, देन वी हैव क्लास एस्कोमाइसिटीज. ठीक बेटे. क्लास एस्कोमाइसिटीज के बाद वी हैव अनदर क्लास दैट इज क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. देन आफ्टर बेसिडियोमाइसिटीज हमारे पास एक ऐसी क्लास आ जाती है फंजाई की जिसको हम डिटिरोमाइसिटीज कहते हैं. और डिटिरोमाइसिटीज जो हैं दे कम्स अंडर द फॉल्स फंजाई. ठीक है. उनको फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं दैट आई विल टेल यू लेटर. देन वी हैव किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके बेटे. तो ये सारे जो हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. लास्ट में हम पढ़ेंगे वायरसेस एंड विरियोइड्स के बारे में. वायरसेस आर वेरी मच नोन टू यू, विरियोइड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ
organisms which are smaller than viruses. We will also study about the lichens too. Okay, student. So that's all. So tomorrow we will start this chapter 2, that is biological classification. Okay, but if you have any doubt, you can send me your question on my WhatsApp number. And whatever doubt comes in your mind, any query regarding any of the topic, I think the first chapter is an easier one. अब असली botany शुरू होगी next chapter से. So whatever I taught you every day, you must go through that page on the same day.